Today's topic is budgetary control. Budgetary control, and it is the part of controlling. Okay. Yes, ma'am. What do you mean by controlling? What do you mean by controlling? Camera on. करो सभी. सेजल, सुनिधि. Ma'am, it refers to Bring the actual result closer to the desired result. The last function of management. What is the importance of controlling? Ma'am, making What efficient is use of the resources, importance of controlling? improving employee motivation, Mayank, Yes, ma'am. what are the importance of controlling? Mayank, Yes, ma'am. what are the features of controlling? Okay, features. Yeah, or characteristics. Mayank, Yes, ma'am. बोलो बेटा. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप लिख के ही जा रहे हैं. What are the features of controlling? Sunidhi, what are the features of controlling? Ma'am, controlling is continuous activity. Controlling is related to result. Controlling is both the beginning and end of the process of management. Okay, good. And what is the process of controlling? Diya, yes, ma'am. process of controlling. Yes, steps involved in controlling. What are the steps involved in controlling? कौन-कौन से steps जो है वो controlling में follow किए जाते हैं? Ma'am, setting performance standard. Setting performance standard. Good. Ma'am, taking corrective actions. Next is Ma'am, measurement of actual performance. measurement of actual performance. Very good. Next, comparison. Comparison of actual performance with standards. Good. And fourth is Ma'am, analyzing deviation. Deviation. good. And fifth is Ma'am, taking corrective action. action. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है बजटरी कंट्रोल. अब बजट क्या होता है? बजट क्या होता है बेटा? सुना है ना बजट आपने? वर्ड सुना होगा, मतलब बार बार इसको यूज होते हुए सुना होगा, देखा होगा. क्या होता है ये बजट? बजट का मतलब क्या होता है? हम बनाते हैं ना किसी चीज का बजट बनाते हैं हम, एक जो मतलब कितना खर्चा होगा, मतलब थोड़ा हम एस्टिमेट लगाते हैं ना. ठीक है, तो बजट क्या होता है? बजट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन. क्या होता है बजट? बजट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन. ठीक है, मतलब बजट में हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना खर्चा आएगा, एक एस्टिमेट लगाते हैं, उसको बोलते हैं बजट. तो जो कंट्रोलिंग है, जो कंट्रोलिंग जिसमें जो स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल में जो है वो परफॉर्मेंस में जो कंपैरिजन की जाती है, उसी तरह जो बजट है वो भी कंट्रोलिंग में यूज होता है. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बजटरी कंट्रोल. राइट डाउन करो, बजटरी कंट्रोल. सुनिधि कैमरा ऑन करो. अभिषेक,
सेजल, अक्षित, दिया, ओके, राइट डाउन करो। बर्थडे कंट्रोल इज अ सिस्टम which uses birthday control is a system which uses budgets as a mean of controlling. Birthday control is a system, birthday control क्या है? एक सिस्टम है which uses budget, जिसमें कि बजट जो है वो कैसे यूज किया जाता है? कंट्रोल को कंट्रोलिंग करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। बजट कंट्रोल इज अ सिस्टम व्हिच यूजेस बजट्स एज अ मीन ऑफ कंट्रोलिंग। बजट कंट्रोल इज अ सिस्टम बजट कंट्रोल is a system देखिए कुछ नहीं रहा। system which uses budget as a means of controlling. ओके, जिसमें बजट को जो यूज किया जाता है वो कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बजट कंट्रोल। It means that when different activities of the business enterprise, it means that when different activities of a business enterprise are sought to be controlled, it means that when different activities of a business enterprise are sought to be controlled with the help of budget. It is called budget control. It is called budget control. It means that when different activities of business enterprise are thought to be controlled with the help of budget, it is called budget control. बजट कंट्रोल, तो बजट क्या है? बजट से जो बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. Okay. Next is characteristics of budget control. Characteristics of budget control. Prince, then we show me your notebooks. Next is characteristics of of budget control. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगी दिया? Yes, ma'am. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट कंट्रोल, तो बजट कंट्रोल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? जैसे हमने कंट्रोलिंग की फीचर्स पढ़ी है ना, उसी से मिलती जुलती होंगी बजट कंट्रोल की भी, ठीक है। क्या क्या फीचर्स हो सकती हैं?
फर्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी। लिखिए कंपैरेटिव स्टडी। बजट कंट्रोल के थ्रू जो है वो हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, किस किस के बीच कर सकते हैं, मतलब कंपैरेटिव स्टडी किसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट कंट्रोल। Comparative study is the first characteristics of budget control. Under it, the figures or estimates are compared. Under it, the figures or estimates are compared with the actual work progress. ठीक है, इसमें जो estimates है ना, ठीक है, उनको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी फीचर बजट कंट्रोल की कि एक कंपैरेटिव स्टडी है जिसमें जो एस्टिमेट्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल प्रोग्रेस के साथ। क्लियर? यस मैम। ओके, the figures or estimates are compared with the actual performance, actual work performance. Okay, next is analysis of deviation. Next is analysis of deviation. Deviation क्या होता है मैंने? Deviation क्या होता है? क्या होता है बेटा डेविएशन? सेजल, डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे डेविएशन जैसे हम कंट्रोलिंग में जो है डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। और किसके बीच डिफरेंस? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है और जो स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं उनके बीच जो डिफरेंस आता है उसको हम डेविएशन बोलते हैं। तो बजट कंट्रोल की जो दूसरी फीचर है वो एनालिसिस ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेविएशन मतलब जो डिफरेंस होगा उसको क्या किया जाएगा? एनालाइज किया जाएगा। Under budgetary control, the actual figures are compared with the standard figure. मैम एक बार फिर से रिपीट करना। Under budgetary control, actual figures are compared with the standard figures and deviations are sought to be known as and studied deeply. ठीक है, मतलब कंपेयर किया जाता है और जो डेविएशन आता है उसको डीपली स्टडी किया जाता है एंड द कॉजेस ऑफ डेविएशंस आर डिस्कवर्ड। और जो कॉजेस हैं डेविएशन के क्या क्या कारण हैं उनको क्या किया जाता है? डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, मतलब देखा जाता है कि कौन से रीजन है जिससे ये डेविएशन आ रहा है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो मैच क्यों नहीं हो रही है, वो डेविएशन जो है वो एनालाइज किया जाता है। ठीक है, रीजन का पता लगाया जाता है। ओके, क्लियर बेटा? Yes. तो टू फीचर्स हैं बड़ी हैं अभी। Yes, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज comparative Comparative study, analyze of deviation. analysis of deviation। ठीक है, ये हमारी बजट कंट्रोल की फीचर्स हैं। ठीक है, बजट कंट्रोल जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोलिंग से, या तो प्रोसेस से पूछते हैं या तो इम्पोर्टेंस पूछते हैं या फिर बजट कंट्रोल। ठीक है, Yes, नेक्स्ट ma'am. इज करेक्टिव एक्शन। सारे जो फीचर्स पढ़ रहे हैं ये कौन से फीचर किससे मिलते जुलते हैं? ये कंट्रोलिंग से मिलते हैं।
जो हमने कंट्रोलिंग जो उसके फीचर्स पढ़े थे ना और जो इम्पोर्टेंस पढ़ी, ठीक है, उससे मिलते जुलते हैं। प्रोसेस भी इसमें थोड़ा सा होता है। तो जो कंट्रोलिंग है अगर किसी प्रोसेस को आप ढंग से पढ़ लेंगे तो बजरी कंट्रोल भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें फर्स्ट था कि कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, कंट्रोलिंग में भी एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है ये कंपेयर किया जाता है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी होगी। दूसरा है एनालिसिस ऑफ डेविएशन। अब जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो डेविएशन आएंगे, ठीक है, अगर डेविएशन है तो उसका रीजन पता लगाना कि क्यों आते हैं डेविएशन, ठीक है। और थर्ड क्या होगा, थर्ड जो फीचर होगी वो होगी कि अगर डेविएशन करेक्टिव एक्शन, ठीक है, अगर डेविएशन है, डिफरेंस है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए करेक्टिव एक्शन होनी चाहिए, वो जो है वो भी बजरी कंट्रोल के जो है वो लिए जाते हैं करेक्टिव एक्शन। तो ये थर्ड फीचर जो है करेक्टिव एक्शन। क्लियर? यस मैम। क्लियर बेटा? यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन। Corrective action लिखेंगे, under this the causes of deviations are discovered and remedial action is suggested. Under this the causes of deviations are discovered and remedial action is suggested. ठीक है, तो जो करेक्टिव एक्शन है वो बस्टी कंट्रोल के थ्रू जो है वो लिए जाते हैं। और बस्टी कंट्रोल के थ्रू ये भी दिखा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन, ठीक है, कि किस टाइप का जो करेक्टिव एक्शन है वो लेना चाहिए, ठीक है, ये किससे देखा जाता है, बस्टी कंट्रोल के थ्रू। करेक्टिव एक्शन तो लिए जाते हैं बट किस टाइप का करेक्टिव एक्शन लेना है बस्टी कंट्रोल के थ्रू जो है वो देखा जाता है, लिया जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर है बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट, बजट कंट्रोल की फोर्थ फीचर है बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट के लिए जो है वो बजट जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है, बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक ही डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग से बजट बनाए जाते हैं और जो मेन बजट होता है उसको हम मास्टर बजट बोलते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. show me your notebooks. अक्षिता, हिमांशु, प्रिंस, आयन। बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इसमें लिखेंगे आप लोग अंडर इट बजट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटीज आर प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ अ बजट फॉर अ डिपार्टमेंट। मतलब एक सिंगल डिपार्टमेंट की जगह जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग बजट जो है वो बनाए जाते हैं, इसके थ्रू बजटी कंट्रोल के, ठीक है, बजटी कंट्रोल में क्या कहता है अलग अलग जो है वो बजट बनाए जाते हैं, ठीक है। All the budgets are controlled in the form of a master budget और इन सारे बजट को कंट्रोल करता है वो मास्टर बजट होता है, ठीक है। Yes, क्लियर? ma'am. अभिषेक, तन्वी, कैमरा ऑन करो बेटा, नोटबुक्स बताओ मुझे।
ओके, ये अक्षित और तन्वी, अभिषेक, budget for all departments. Under it, budget for all departments or activities are prepared instead of a budget for a department or an activity, and then all the budgets are controlled in the form of master budget. ओके, फोर्थ फीचर हो गई। अब फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ है बेस्ड ऑन फोरकास्ट। बेस्ड ऑन फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग करना। रिपीट करो बेटा, क्या बोला आपने? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट मतलब पहले से मतलब अनुमान लगाना कि ये चीज जो है इतना बजट हो सकता है, या ऐसे इसके लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए इतने जो बजट है उसके लिए जो एक्टिविटीज की जानी है, जो अमाउंट है वो जो डिसाइड होना है, या ऐसे एक एस्टिमेट जो है वो किसके लिए लगाया जाता है? फ्यूचर के लिए लगाया जाता है। तो जो बजटरी कंट्रोल है वो भी किस पे बेस्ड होता है? फ्यूचर पे। ठीक है, तो फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसी पे बेस्ड होता है आपका बजटरी कंट्रोल। ठीक है, यस मैम। क्लियर? Yes, देखो ma'am. फिफ्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन फोरकास्ट। बेस्ड ऑन फोरकास्ट। प्रिंस, आर्यन, तन्वी, show me your notebooks. कैमरा ऑन करिए आप। आर्यन, तन्वी, प्रिंस। Under the budgetary control process, budgets are prepared on the basis of forecasting. Budget जो है वो किसके बेस पे प्रिपेयर किए जाते हैं? फोरकास्टिंग। ठीक है, फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान के बेस पे जो है वो तैयार किए जाते हैं बजट। किसमें? बजट कंट्रोल में। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिया, अक्षित, अभिषेक, कौन कौन से फीचर्स हुए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हुए? स्मृति, बजटरी कंट्रोल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है? अपनी फाइल जो है स्टडी की है अभी। फर्स्ट इज Comparative study. ओके, कंपैरेटिव स्टडी। उसमें क्या किया जाता है? कंपेयर। तो किसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ? Ma'am, figures of estimates are compared with actual work. Figures or estimates are compared with the standard with the actual work performance. Okay, next क्या है फीचर? दिया, Analysis of deviation. एनालिसिस ऑफ डेविएशन। डेविएशन को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, जो डिफरेंस है उसको एनालाइज किया जाता है कि किस रीजन से जो है डेविएशन आ रहा है। ठीक है, एनालाइज करना। ओके, थर्ड फीचर इज मयंक। यस मैम। मयंक, यस मैम। थर्ड फीचर ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्या था? बताइए बेटा, जल्दी बताइए। यस मैम, बता रहा हूँ। करेक्टिव एक्शन। ठीक है, जो डेविएशन आते हैं उनके लिए
क्या जो एक्शन है, सही एक्शन है, करेक्टिव एक्शन क्या लिए जाने हैं और किस टाइप के लिए जाने हैं, वो बर्सरी कंट्रोल में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट अभिषेक, अभिषेक बजट सॉरी बर्सरी कंट्रोल के फोर्थ फीचर क्या है, क्या करवाया मैंने अभी? बिजनेस फॉर ऑल, अक्षित, बजट फॉर ऑल, अक्षिता, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोली Ma'am, बेटा fourth फोर्थ feature. फीचर। Ma'am, budget for all departments. बजट और ऑल डिपार्टमेंट, बजटी कंट्रोल में जो है वो बजट जो बनाया जाता है वो सभी डिपार्टमेंट्स का बनाया जाता है, और ये जो डिपार्टमेंट्स के सभी जो बजट होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? मास्टर बजट से। ठीक है, Yes, Next is ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, based on forecast. Based on four. based on forecast। तो जो बजटी कंट्रोल है वो किस पे बेस्ड है? फोरकास्टिंग। ठीक है, आपके जो Yes. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बजटी कंट्रोल और प्रैक्टिस्टिक्स, ये सभी को लर्न होने चाहिए। कल मैंने फिर से आपसे सारे ये सुनने हैं। ठीक है, जब भी क्लास में आना है तो ये सब लर्न होने चाहिए आपको विद एक्सप्लेनेशन। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज Yes, ma'am. एडवांटेजेस ऑफ बजटी कंट्रोल। एडवांटेजेस ऑफ बजटी कंट्रोल। Advantages of budgetary control। क्या एडवांटेजेस होंगी बजटरी कंट्रोल की? दूसरा कंट्रोल की होती है ना एडवांटेजेस, सेम वैसे ही एडवांटेजेस जो है बजटरी कंट्रोल की। ठीक है, हमने एडवांटेजेस मतलब इंपॉर्टेंस पढ़ी है हमने कंट्रोलिंग की, सेम वैसे ही जो इम्पोर्टेंस है वो एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगी बजटरी कंट्रोल। ठीक है, सेम वही इम्पोर्टेंस होता है, क्यों जरूरी है। ठीक है, और ये मतलब ठीक है इम्पोर्टेंस का मतलब ये जरूरी क्यों है। ठीक है, तो जो एडवांटेजेस है सेम एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? लाभ, बेनिफिट्स। ठीक है, तो जो बजटरी कंट्रोल के बेनिफिट्स हैं उसे किसकी तरह होंगे? जो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, हमने की है ना कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस की है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो वैसे ही होगी बजटरी कंट्रोल की जो एडवांटेज होंगे उसे वैसे होगी। तो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट क्या था हमने क्या स्टडी किया था? फर्स्ट एडवांटेज, फर्स्ट इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग की, हेल्पफुल इन अटेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में क्या करता है? हेल्प करता है बजटरी कंट्रोल। तो फर्स्ट जो एडवांटेजेस है वो हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हेल्पफुल इन अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स और गोल जो है वो एक ही जैसे। ठीक है, क्लियर? यस मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. helpful in attaining organizational objectives। helpful in attaining organizational objectives। क्या था? हेल्पिंग, हेल्पफुल इन attention, हेल्पफुल इन अटेंशन। आगे क्या मैम? तो जो बजटरी कंट्रोल है उसका जो
एडवांटेजेस हैं, जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, क्यों बजट कंट्रोल जो है वो किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों बजट बनाए जाते हैं, इसलिए ही बनाए जाते हैं ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल है, उनको इजीली अचीव किया जा सके। ठीक है, समझ गए? जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं, मेन तो होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट तभी अर्न कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन जब उसमें जितने भी प्रोडक्शन पूरी है, जो कितना मतलब उसमें कॉस्ट लगेगी, उससे कितना बेनिफिट होगा, कितनी सेल होगी, मतलब वो सब चीजें जो है वो देखी जाती हैं। ये सब चीजें जो है बजट कंट्रोल के जो है एक एस्टिमेट लगाया जाता है, कितना खर्च आएगा और कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो जो बजट कंट्रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये फर्स्ट एडवांटेज है। ठीक है, क्लियर बेटा? हेल्पफुल इन अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बजट कंट्रोल जो है वो हेल्प करता है बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने। ठीक है, Yes. क्लियर? सेकंड क्या होगा बेटा? सेकंड फीचर, सेकंड जो एडवांटेजेस होगी वो क्या हो सकती है? Source of motivation for employees. एक बोलो, सुनिधि आप बोलो। Source of motivation for employees. Sources of motivation of employees. Good. Source of motivation of employees. ठीक है, तो इसमें लिखिए, हेडिंग लिखिए पहले, सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, कैमरा ऑन करिए, अक्षित, सुनिधि, दिया, वीडियो ऑन होनी चाहिए तुम्हारी। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो देखो बजट कंट्रोल के थ्रू किया जाता है, एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड बनाए होते हैं। ठीक है, कि एक काम को पूरा करने के लिए, मतलब जैसे अगर काम किया है कि बर्थडे जो है उन्हें मतलब एक ही बर्थडे में उन्हें 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉइज है वो वन डे में अगर 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट मींस पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जब पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है, तो जब अप्रिशिएट किया जाता है तो क्या होगा, एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट होते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. समझ आया? Yes, Yes, ma'am. एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का भी सोर्स है क्या? बजट कंट्रोल। क्यों है? क्योंकि जो बजट कंट्रोल है उसमें क्या किया जाता है, एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बनाते हैं मतलब वन डे में 100 यूनिट्स जो है एम्प्लॉयज ने, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज हैं उन्होंने प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बनाने हैं, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब वन डे में 100 यूनिट्स जो है वो बना रहे हैं। इट मींस जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉइज अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो उनको उनके जो सुपीरियर है उनके द्वारा एप्रिशिएट करना है। जब एप्रिशिएट होंगे तो वो मोटिवेट भी होंगे। क्लियर? तो ये एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का सोर्स है बजट कंट्रोल। तो ये इसकी सेकंड एडवांटेज है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is optimum utilization of resources. Third is optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. ठीक है, अब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या बताया? रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं जैसे मैन, मटेरियल, मनी, इन सब
जो वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से और मनी उसमें जो है कंसीडर किया जाता है, कितना पैसा लगेगा, मतलब वो सब जो है वो उनका मैक्सिमम यूज, ठीक है। तो जो बजट कंट्रोल जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। क्लियर? थर्ड हेडिंग लिखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. वीडियो ऑन करो। तन्वी, आर्यन, हिमांशु, प्रिंस, शो मी योर नोटबुक्स। क्या लिखा है? Next is achieving coordination. Achieving. Fourth is achieving coordination. Coordination का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे आपने पढ़ा है कि coordination is the sense of management, पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में हमें, है ना, हमने स्टडी किया था कि वहां पे लिखा हुआ था कि coordination is the essence of management। तो coordination क्या होता है? दिया? Yes, ma'am. क्या होता है बेटा coordination? Ma'am, coordination means coordinate करना. बताओ बेटा। कोऑर्डिनेशन मतलब कि जैसे मिलजुल कर काम करना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो मेन टारगेट है वो मतलब उसके जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है। तो जितनी भी एक्टिविटीज है ना, जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फॉर्म में जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही हैं, वो उनका सभी का एक कॉमन गोल होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं उनको अचीव करना, ठीक है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे बजट कंट्रोल के अंदर, जो भी जिन डिपार्टमेंट्स पे मतलब अलग अलग बजट बनाए जाते हैं, उन सभी का जो है वो एक ही गोल होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना, ठीक है। उसके लिए जो जितने भी एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट्स काम मतलब यूज होते हैं वहां पे, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और जो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, उन सभी का एक कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। वो तभी कर पाएंगे जब उनमें कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। तो जो बजटरी कंट्रोल है वो एम्प्लॉइज और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन को बनाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो है वो एस्टैब्लिश करता है बजटरी कंट्रोल अमंग